جلدی چلو دانین، اگر گاؤں والوں نے ہمیں دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی، اس کی ماں روحان سی ہو کر بولی۔ انہوں نے ایک بڑی سی چادر دانین کے وجود پر ڈالی اور اسے لے کر کھیتوں کی طرف نکل پڑی۔ کھیتوں کے قریب ہی گھنے درخت شروع ہو جاتے تھے، وہ اسے لے کر درختوں کے قریب آ گئیں تاکہ کوئی ان کو دیکھ نہ سکے۔ اگر اس حالت میں گاؤں کا کوئی فرد ان کو دیکھ لیتا تو ایک طوفان آ جانا تھا۔ انہوں نے دانین کو ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور پانی والی بوتل اپنے ہینڈ بیگ سے نکالی۔ دانین نے ایک ہی سانس میں پانی کی بوتل سے پانی پیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ رو رہی تھی، اس کے چہرے پر اذیت تھی۔ اس نے کرب سے کہا، امی کاش وہ سب نہ ہوا ہوتا، مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کی ماں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا، ہمت کرو بیٹا، ایک مرتبہ یہ سب ہو جائے تو میں تمہیں لے کر لندن چلی جاؤں گی۔ ہم ہمیشہ کے لیے اس ملک کو چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے اور یہاں اس منوس گاؤں میں کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اس کی ماں اذیت کے ساتھ بولی۔ دانین کے پیٹ میں شدت سے درد اٹھ رہی تھی، مگر ہوش اس کے اور اس کی ماں کے تب اڑے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے قریب ہی کوئی کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا۔ یہ احساس ہی روح لرزا دینے والا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اب ان پر قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ جب گاؤں والوں کو اس بارے میں معلوم پڑے گا تو ان کو کٹھن سزا دی جائے گی۔ دانین ایک بار پھر رونے لگی۔ وہ ان دنوں کو یاد کرنے لگی جب وہ اس مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ موسم نہایت گرم تھا، گرم ہواؤں کی وجہ سے فضا میں آج زیادہ ہی حدت تھی۔ یہ منظر راول پنڈی کے ایک گاؤں ادھوال کا تھا۔ یہ گاؤں راول پنڈی میں اڈیالہ روڈ پر واقع ہے۔ تقسیم ہند سے قبل بھی یہ گاؤں موجود تھا۔ یہ گاؤں زرعی ہے، سو اس لیے یہاں فصلیں بھی اگائی جاتی ہیں۔ آج موسم نہایت گرم ہو رہا تھا، سورج سوا نیزے پر تھا۔ گھر کے اندر تو گرمی کی حدت بھی زیادہ محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے لوگ گھروں سے باہر چارپائیاں بچھا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اوپر سے بجلی بھی چلی گئی تھی، لوگ ہاتھ پنکھوں کو جلا کر ہوا لے رہے تھے۔ ایسے میں وہ لڑکی دانین اپنے گھر سے نکلی اور پھر اپنے پڑوس میں رہتی بہترین سہیلی اریبا کو لے کر چل پڑی۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے قریبی پارک میں آ گئیں۔ یہ پارک ان دونوں کو نہایت پسند تھا، اکثر وہ یہاں چہل قدمی بھی کرتی تھی۔ بچپن میں بھی وہ اس پارک میں آ کر کھیلا کرتی تھیں۔ ان کا بچپن ایک دوسرے کے سنگ بڑا خوبصورت گزرا تھا۔ پارک میں آ کر وہ درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ اس پارک میں درختوں کی بہتات ہونے کی وجہ سے گرمی کی حدت قدرے کم تھی اور چھاؤں کے ساتھ ساتھ مدھم ٹھنڈک کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ وہ یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے چپس اور بسکٹ کھا رہی تھیں۔ حال ہی میں انہوں نے میٹرک کے امتحانات دیے تھے، ابھی فی الحال وہ فارغ تھیں۔ کالج تو انہوں نے رزلٹ آنے کے بعد جانا تھا۔ دانین کو کالج اور پھر یونیورسٹی جانے کا بہت شوق تھا۔ ابھی وہ دونوں ایک ساتھ کالج جانے کے حوالے سے بڑی خوشگوار گفتگو کر رہی تھیں، مگر وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ ایسا ممکن نہیں ہو پائے گا۔ اگر وہ جان جاتی تو اس وقت ان کے چہروں پر مسکراہٹ کے بجائے اذیت ہوتی۔ دوپہر کو وہ عصر کی اذانوں کے بعد گھر جانے کے لیے اٹھ گئیں۔ راستے میں جاتے ہوئے انہیں امجد مل گیا۔ وہ رک کر دانین کا حال چال پوچھنے لگا، جبکہ دانین کو سخت کوفت محسوس ہوئی، مگر مروت میں وہ اس کی باتوں کا جواب دینے لگی۔ امجد اس کی ماں کی سہیلی کا بیٹا تھا، دونوں کے گھر قریب قریب تھے۔ بچپن میں دانین اور امجد کی آپس میں کافی دوستی تھی، مگر جوں جوں دانین بڑی ہوتی گئی اس کی شخصیت میں سنجیدگی اور مخالف جنس کے لیے جھجک پیدا ہونے لگی۔ یہی وجہ تھی اب اس نے امجد کو بھی مخاطب کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھی، چاہے وہ اس کا کزن ہی کیوں نہ ہو، مگر امجد یہ بات نہیں سمجھتا تھا۔ وہ بہانے سے دانین کے آگے پیچھے پھرتا رہتا اور اس سے بات کرنے کے 100 بہانے ڈھونڈتا تھا۔ اب بھی وہ اس کے راستے میں حائل ہو گیا تھا۔ امجد کا تو یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اسی لیے مجبوراً دانین نے ہی اسے اللہ حافظ کہا تو وہ بھی اللہ حافظ کہہ کر کھیتوں کی طرف چل پڑا۔ امجد کے ابا کھیتوں میں کاشتکاری کرتے تھے، یہ سب کھیت اس کے والد صاحب کے ہی تھے، وہ کافی امیر لوگ تھے۔ امجد کے جانے کے بعد اریبا کہنے لگی، دانین مجھے تو لگتا ہے امجد تمہیں پسند کرتا ہے، جیسے اس کا انداز ہے نا، مجھے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت نظر آتی ہے۔ اریبا کی بات سن کر دانین جھیپ سی گئی اور اس کے دل میں عجیب سا شور پیدا ہوا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی اس کی قسمت میں ایک بہت بڑا درد اس کے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ اریبا کی باتیں اس کے ذہن میں بار بار آ رہی تھیں، اس کا دماغ اسی بات میں اٹک گیا تھا کہ امجد اسے پسند کرتا ہے۔ اریبا کی باتیں اس کے ذہن میں بار بار آ رہی تھیں، اس کا دماغ اسی بات میں اٹک گیا تھا کہ امجد اسے پسند کرتا ہے۔ یہ بات اس کے دل کے کسی نہ کسی کونے میں پہلے سے ہی موجود تھی، جیسے امجد کا انداز تھا، اکثر وہ بھی یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ امجد اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، نہ صرف اس کا بلکہ اس کی ماں حاجرہ بیگم کا بھی خیال رکھتا تھا۔ دانین کے والد صاحب لندن میں ہوتے تھے، وہ وہاں اپنے ایک دوست کے ساتھ تلاش معاش میں گئے تھے، جہاں ان کی بڑی اچھی جگہ نوکری لگ گئی۔ پچھلے 5 سالوں سے وہ وہیں پر تھے، ہر ماہ وہ انہیں تنخواہ پاکستان بھیجتے تھے، جس سے گزارا بڑا اچھا ہو رہا تھا۔ دانین کی امی حاجرہ بیگم نے دانین کا جہیز کا سامان بنانا بھی شروع کر دیا تھا۔
دانین ابھی صرف 15 سال کی تھی، ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اسی لیے وہ اپنی ساری محبت صرف اسی پر نچھاور کرتی تھی۔ سال میں ایک مرتبہ اس کے ابو افتخار صاحب پاکستان آ جایا کرتے تھے۔ ابھی پچھلے دنوں ہی وہ لندن واپس گئے تھے۔ اس طرح ان کی غیر موجودگی میں امجد ان کے بہت کام کرتا تھا، بازار سے سودا سلف بھی لا دیتا تھا۔ حاجرہ بیگم کو تو وہ بڑا پسند تھا۔ دانین جانے کیوں آج بار بار اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پہلے تو اس نے کبھی امجد کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ وہ اریبہ کو کوسنے لگی کہ ضرور اس نے اس بات کا ذکر کرنا تھا۔ اس بات کا تذکرہ چھیڑ کر اس نے دانین کے دل کے تار بھی ہلا دیے تھے۔ اس کے دل میں امجد کی محبت کا بیج تب لگا جب کچھ ہی دنوں بعد امجد، اس کی امی اور اس کے والد صاحب گھر تشریف لے آئے۔ وہ دانین کا ہاتھ مانگنے آئے تھے۔ حاجرہ بیگم تو بڑی خوش تھیں۔ انہیں امجد اپنے بیٹوں جیسا لگتا تھا۔ ان کا اپنا تو کوئی بیٹا نہیں تھا، اسی لیے وہ امجد کو دل سے اپنا بیٹا مانتی تھیں۔ اس رشتے کے حوالے سے انہوں نے تھوڑا سا بھی سوچنے کا وقت نہ لیا اور جھٹ سے ہاں کر دی۔ انہوں نے دانین سے اس بارے میں پوچھا تو وہ سر جھکا گئی۔ حاجرہ بیگم اور افتخار صاحب بڑے خوش تھے۔ اس خوشی کے موقع پر وہ پاکستان نہیں آ سکتے تھے، اسی لیے لندن میں ہی وہ ویڈیو کال کے ذریعے اس منگنی میں شریک ہوئے۔ اسی دن امجد کی ماں نے دانین کے ہاتھ میں امجد کے نام کی انگوٹھی پہنائی اور ایک خوبصورت چادر اسے تحفے میں دی۔ دانین کا دل تو زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا قدرت نے دنیا جہاں کی خوشیاں سمیٹ کر اس کی جھولی میں ڈال دی ہوں، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خوشیاں وقتی تھیں اور غم زندگی بھر کا تھا۔ منگنی کے بعد سے دانین اب خود بھی امجد کو مخاطب کرنے لگی تھی، مگر ابھی تک اس نے امجد سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ امجد زیادہ تر ویکینڈ پر گھر آتا تھا کیونکہ اب وہ یونیورسٹی جاتا تھا اور پڑھائی کا لوڈ بہت زیادہ تھا، اسی لیے اس نے دانین سے کہا تھا کہ وہ واٹس ایپ پر اس سے بات کر لیا کرے۔ دانین کی رضامندی کے بعد گفتگو کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کے درمیان بات چیت کو 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ جون کا مہینہ چل رہا تھا۔ دانین کا میٹرک کا رزلٹ آنے میں ابھی وقت تھا۔ آج اس کی 16ویں سالگرہ تھی۔ امجد اسے تحفہ دینے بھی آیا تھا۔ وہ بڑی خوش تھی، مگر نہیں جانتی تھی آج اس کی خوشیوں کا آخری دن تھا۔ حاجرہ بیگم کے ساتھ وہ سالگرہ کی خوشی میں ڈنر قریبی ریسٹورنٹ سے کر کے آئی تھی۔ تھک ہار کر وہ جلدی سو گئی۔ اگلی صبح اٹھی تو اس کا موڈ خوشگوار تھا۔ دوپہر کو حاجرہ بیگم امجد کے گھر چلی گئیں۔ اب گھر میں صرف اس کے والدین ہوتے تھے۔ امجد راولپنڈی یونیورسٹی جا رہا تھا اور وہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں مقیم تھا۔ دوپہر کو امی کے جانے کے بعد دانین شاور لینے چلی گئی۔ آج موسم بھی کافی اچھا تھا۔ سورج کو بادلوں نے گھیرا ہوا تھا، جس وجہ سے دھوپ نہیں تھی اور حدت بھی کافی کم تھی۔ وہ اپنے لمبے گھنے بالوں کو سکھانے کی غرض سے صحن میں آ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس نے واٹس ایپ آن کی اور امجد سے بات کرنے لگی۔ باتوں کے دوران اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے ساتھ چارپائی پر کوئی آ کر بیٹھا ہے۔ یہ احساس اتنا شدید تھا کہ لمحے بھر کو وہ ٹھٹکی، مگر اگلے ہی لہجے اسے ہوا کا بھاری جھونکا سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ امجد سے بات کرتے کرتے اسے نیند آنا شروع ہو چکی تھی۔ اس نے فون رکھا اور وہیں چارپائی پر لیٹ کر سو گئی، کیونکہ امی کے آنے میں تو ابھی کافی وقت تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ سو لیا جائے۔ ابھی اسے نیند کا مزہ لیتے ہوئے چند لمحے ہی ہوئے تھے جب اسے اپنی گردن پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، تو وہ ہاتھ اس کی گردن کو دبا رہا تھا۔ پہلے تو وہ اسے اپنا خواب سمجھتی رہی، مگر جب گرفت تیز ہونے لگی تو اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ کوئی واضح طور پر اس کی گردن دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی، مگر کون یہ حرکت کر رہا تھا وہ اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنی جان بچانے کی خاطر ہاتھ پاؤں چلانا شروع کر دیے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر گلے سے آواز بھی نہ نکل پائی۔ اسے لگ رہا تھا اگر یوں ہی اس کی گردن پر دباؤ بڑھتا رہا تو وہ تھوڑی ہی دیر میں مر جائے گی۔ وہ یہ سب روک بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی بے بسی کا عالم یہ تھا کہ جو اس کے ساتھ یہ ظلم کر رہا تھا وہ اسے نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے مدد کی درخواست کرنے لگی اور پھر اس کے ذہن میں آیت الکرسی پڑھنے کا خیال آیا۔ اس نے جو ہی آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اسے اپنی گردن اس خطرناک گرفت سے آزاد ہوتی محسوس ہوئی اور رفتہ رفتہ اس کی گردن کسی اندیکھی طاقت کے شکنجے سے آزاد ہو گئی۔ مگر دانین اس وقت ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈر کے مارے دانین کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں اور اسی لمحے وہ وجود غائب ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس کی آہو پکار پر حاجرہ بیگم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ انہوں نے دانین کو روتا ہوا دیکھا تو ڈر گئیں۔ فوری لائٹ جلائی اور پانی کا گلاس دانین کو تھمایا۔ دانین نے ایک ہی سانس میں سارا پانی اپنے اندر انڈیلا۔ وہ تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ امی کے پوچھنے پر اس نے اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ سنایا کہ کس طرح اس سے اپنی گردن پر دباؤ محسوس ہوا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اپنے اوپر کسی کو دیکھا جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں
और उसी ने उसका गला दबाया हुआ था। ये सुनकर हाजरा बेगम खामोश हो गईं। उनके पास कोई लफ्ज नहीं थे कि दानैन से क्या कहती। वो समझ रही थी दानैन को अरीबा से दूर होने की टेंशन है। अक्सर टेंशन में भी इंसान को ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिनका हकीकत में ना तो वजूद होता है और ना हकीकत से ताल्लुक होता है। वो समझ रही थी दानैन को वहम हो रहा है। उन्होंने दानैन के सर पर प्यार दिया और उसे बहलाते हुए सुला दिया। वो सोच रही थी कुछ दिन बाद दानैन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उन्हें याद था जब उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया था तो उनकी जुदाई में भी वो ऐसे ही ड्रामा से गुजर रही थी। इसीलिए दानैन की कैफियत को भी उन्होंने मामूली समझ लिया, मगर वो नहीं जानती थी ये सब दानैन का ख्वाब या महज वहम नहीं था, बल्कि एक ऐसी भयानक हकीकत थी जो जल्द उनके सामने आने वाली थी। दानैन सो तो गई मगर नींद में भी वो सख्त बेचैन थी। उसके दिल की धड़कनें निहायत तेज थीं। दानैन को सोता हुआ देखने के बाद हाजरा बेगम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसकी सेहतयाबी की दुआ करके उन्होंने भी आंखें मूंद ली। दानैन हर शय से अब खौफजदा रहने लगी थी। जब भी आंखें मूंदती तो वही मंजर आंखों के सामने आ जाता। अगर सोने की कोशिश करती तो यूं महसूस होता कोई इसका गला घोंटने की कोशिश कर रहा है। टीना को देखकर ही उसके होश उड़ जाते। उसे लगता कि टीना उसको तंजिया निगाहों से देखते हुए हंस रही है। वो टीना से भी खौफजदा रहने लगी थी। दरअसल टीना नीली आंखों वाली बिल्ली थी जिसका ताल्लुक रैग डॉल नस्ल से था। वो काफी दोस्ताना थी और पड़ोस में रहती थी। टीना दानैन से काफी मानूस थी, इसीलिए अक्सर वो दीवार फैलाकर दानैन के घर आ जाती थी और फिर काफी वक्त उसके साथ गुजारती थी। दानैन को भी टीना के साथ बहुत मजा आता था, मगर अपना जाने वो टीना से क्यों डरने लगी थी। जब भी टीना को अपने सामने देखती तो उसका दिल घबरा जाता था। आज भी जब वो रात को नींद के इंतजार में थी तो उसे म्याऊं म्याऊं की आवाज आई। वो दंग रह गई कि इतनी रात को टीना कैसे दीवार फलांग यहाँ आ गई है। हालांकि उस वक्त वो अपने टिनी होम में सो रही होती थी। वो जल्दी से हिम्मत करके उठी और सहन में आ गई ताकि टीना को पड़ोस में छोड़ आए, क्योंकि पहले भी कुछ लोगों ने टीना को चोरी करने की कोशिश की थी। अब भी वो कहीं दीवारें फलांग कर गुम होकर किसी बुरे इंसान या जानवर के हत्थे न चढ़ जाए। इसीलिए उसकी फिक्र करते हुए दानैन सहन में आ गई। मगर उसे हैरत और परेशानी तब हुई जब सहन में उसे टीना कहीं दिखाई न दी। अलबत्ता सहन से उसके म्याऊं म्याऊं करने की मतवातर आवाजें आ रही थी। वो टीना को ढूंढते ढूंढते चारपाई के करीब आ गई। ये आवाज सहन के कोने में बिछी हुई चारपाई के नीचे से आ रही थी। जो ही उसने चारपाई के नीचे झांका तो उसकी रूह फना हो गई, क्योंकि चारपाई के नीचे खौफनाक भेड़िया था। दानैन की चीखें निकल आईं। वो भेड़िया चारपाई के नीचे से निकल आया और कद में बड़ा होता गया। उसका कद अब दानैन के कद से भी ऊंचा हो गया था। दानैन की आवाज सुनकर हाजरा बेगम नींद से उठ गईं और सहन में भागी आईं। दानैन कांप रही थी। उसने चारपाई की जानिब इशारा किया। भेड़िया। आवाज बमुश्किल उसके हलक से निकल रही थी। हाजरा बेगम ने हैरत से पूरे सहन का जायजा लिया, लेकिन उन्हें कहीं भेड़िया तो क्या उसका नामो निशान तक नजर न आया। उन्होंने कहा कि भेड़िया का तो पूरे गांव में नामो निशान नहीं, तुम्हें वहम हुआ है बेटा। उन्होंने दानैन को समझाया। उसकी चीखें सुनकर पड़ोस वाले भी उठ चुके थे और अब दरवाजा खटकाकर पूछ रहे थे कि सब ठीक तो है। हाजरा बेगम ने कहा शायद दानैन को कोई वहम हुआ है। उसे लगा सहन में भेड़िया है, इसीलिए डर कर चिल्ला रही थी। हाजरा बेगम ने कहा तो लोग भी हंस पड़े कि वो बचपन से यहीं रहते थे, आज तक भेड़िया तो क्या उसका बच्चा तक नहीं देखा। तो सब लोग घरों को चल दिए थे, जबकि हाजरा बेगम खासी परेशान हो चुकी थी। वो गौर कर रही थी दानैन आजकल कुछ अजीब रिएक्ट कर रही थी। उसकी शख्सियत में अजीब सा बदलाव आ गया था। मगर अगले ही लम्हे उन्होंने खुद को ये कहकर मुतमईन कर दिया कि कॉलेज जाने के बाद, नई सहेलियों में उठने बैठने और वक्त गुजारने के बाद वो पहले जैसी हो जाएगी। शायद अरीबा से जुदाई की वजह से दानैन के जहन पर गहरा असर पड़ा था। दानैन ने अपने साथ होने वाले अजीब और गरीब वाकयात के बारे में अमजद को बताया तो वो उसका मजाक उड़ाने लगा। वो उदास हो गई क्योंकि वो जानती थी ऐसी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। बस एक अरीबा थी जो उसे समझती थी। आज काफी दिनों बाद उसका दिल कर रहा था वो पार्क जाए, अपनी और अरीबा की पुरानी यादें ताजा करे। उन्होंने उसे बखुशी इजाजत दे दी कि शायद खुली फजा में घूमने से, अपने साथ वक्त गुजारने से वो अच्छा महसूस करे। दानैन पार्क में आ गई। आज वर्किंग डे था, इसी वजह से लोग इक्का दुक्का थे। वो उस दरख्त के करीब आकर बेंच पे बैठ गई जहाँ अक्सर अरीबा के साथ बैठती थी। अभी उसे बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब उसे बरगद के इस दरख्त के पत्तों में गैर मामूली जुम्बिश महसूस हुई। दरख्त इतनी तेजी से जुम्बिश कर रहा था कि गोया जड़ से उखड़ जाएगा। वो डर के मारे उठ खड़ी हुई क्योंकि हवा भी नहीं चल रही थी। ऐसे में दरख्त का इतनी शिद्दत से हिलना मामूली नहीं हो सकता था। अचानक दरख्त के ऊपर से किसी ने उसके करीब छलांग मारी। दानैन की रूह फना हो गई।
क्योंकि ये तो वही मोटा और खौफनाक भेड़िया था जिसे उसने अपने घर के सहन में भी देखा था। वो डर कर एक बार फिर वहाँ से भागने लगी। वो भेड़िया उसके पीछे पीछे भाग रहा था। दानैन सबसे मदद मांगती हुई भागती जा रही थी, जबकि लोग तो हैरान थे कि दानैन को हुआ क्या है। किसी को भी वो भेड़िया दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते में अमजद की माँ ने भी दानैन को खौफ से भागते हुए देखा था। वो उनसे भी मदद की दरख्वास्त कर रही थी कि मुझे भेड़िए से बचा लें। यूं वो हाँपती कांपती घर पहुंची और हाजरा बेगम को सब कुछ बताया। उन्हें तो सांप सूंघ गया था। दानैन की हालत देखकर उनका दिल कट रहा था। इतने में अमजद की अम्मी भी घर आ गई थी। वो उनसे पूछ रही थी, दानैन आजकल इतनी अजीब क्यों होती जा रही हो? ये सवाल सुनकर हाजरा बेगम ख्वामख्वाह शर्मिंदा हो गईं। अमजद की अम्मी साफ मायूस नजर आ रही थी। उन्होंने कहा कि आज इसे देखकर लोग बातें बना रहे थे कि दानैन को कोई भेड़िया नजर आता है। अब बताओ भला ये क्या बात हुई? ऐसा कौन सा जादुई भेड़िया है वो जो सिर्फ दानैन को नजर आ रहा है? उस रात भी ये चीखें मारकर भेड़िया भेड़िया चिल्ला रही थी। हाजरा बेगम और दानैन खामोश थे। अमजद की अम्मी को देने के लिए उनके पास कोई जवाब न था। खैर, अमजद की अम्मी घर चली गई थी। हाजरा बेगम दानैन को समझा रही थी। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, गांव वालों को तुम जानती हो, ये कैसे लोग हैं। लड़की जात के बारे में ये बड़े हसास हैं। अगर तुम ऐसे ही डरती डरती नजर आओगी तो जाने तुम्हारे बारे में क्या कुछ कहना शुरू कर देंगे, जिस वजह से तुम्हारी और मेरी बड़ी बदनामी होगी। लोग उल्टा सीधा सोचेंगे। इसीलिए बेटा, खुद को पहले जैसे करने की कोशिश करो। कल तुम्हारा रिजल्ट है, फिर तुम्हें कॉलेज भी जाना है। उसकी अम्मी ने उसे समझाया तो वो ना चाहते हुए भी इस बात में सर हिला गई। उसने मैट्रिक में बड़े अच्छे नंबर्स लिए थे, इसलिए उसे कॉलेज में आसानी से दाखिला मिल गया था। मगर कॉलेज के बावजूद उसकी शख्सियत में कोई बदलाव नजर नहीं आया था। अक्सर वो कॉलेज में भी डर जाती थी। उसे अपने आसपास कोई अजीब से वजूद की मौजूदगी महसूस होती थी। कभी यूँ लगता था कोई उस पर नजर रख रहा है, कभी उसे कॉलेज में दरख्त के पास भेड़िया खड़ा नजर आता। उसकी क्लास की लड़कियां अब आपस में ये सरगोशियां करती थीं कि ये लड़की दानैन दिमागी मरीजा है। ये सुनकर दानैन का दिल टूट जाता था। वो रोती थी कि वो कोई जहनी मरीजा नहीं थी, बल्कि वाकई उसके साथ बहुत कुछ गैर मामूली हो रहा था। वो कॉलेज से तन्हा घर आती जाती थी, मगर कुछ दिनों से गांव वालों में चहमे गोइयां हो रही थी। अक्सर दानैन को भी ऐसा महसूस होता था कि जब वो कॉलेज आती जाती है तो कोई उसके साथ मौजूद होता है। एक मर्तबा उसे अपने साथ एक अजीब सा साया नजर आया और फिर उसके बाद वो साया उसे हर वक्त अपने साथ रहता महसूस होता। वो इससे पूछती, तुम कौन हो? तो वो आगे से जवाब देता, तुम मुझे जल्द जान जाओगी। ये सुनकर वो दंग रह जाती। गांव वालों में ये शोर मच गया था कि दानैन किसी लड़के के साथ अक्सर उन्हें दिखाई देती है। जब ये बात अमजद की अम्मी हाजरा के घर कहने गई तो हाजरा बेगम समेत दानैन भी हैरान रह गई। वो मंगनी तोड़कर कहने लगी, हाजरा, तुम्हारी बेटी तो बड़ी अयाश है। मेरे बेटे से मंगनी होने के बावजूद गैर लड़के के साथ घूमती फिरती है। मुझे तो ये बेशर्म लगती है, इसीलिए अपने बेटे से मैं इसका रिश्ता तोड़ती हूँ। यूँ उन्होंने दानैन के हाथ से अंगूठी उतारी और अपनी दी हुई चादर दबोची और घर से चली गई। जबकि हाजरा बेगम का और दानैन का रो रो कर बुरा हाल था। दानैन कुरान मजीद पर हाथ रख कर उन्हें शुरू से आखिर तक ये सब बातें बता रही थी कि आज तक जो इसके साथ हो रहा है वो वहम हरगिज नहीं है। उसकी बातें सुनने के बाद हाजरा बेगम भी किसी नतीजे पर पहुंच गई थी। उन्होंने सोचा कहीं वाकई तो दानैन पर किसी आसेब का साया तो नहीं, क्योंकि पहले तो वो समझी थी शायद दानैन किसी ड्रामा के जेर असर है, लेकिन बात इतनी बढ़ जाएगी उन्होंने सोचा नहीं था। दानैन ने कितनी बातें उनसे छुपाई थी कि जब किसी ने यकीन ही नहीं करना तो बताने का क्या फायदा। यूं एक रात हाजरा बेगम ने फैसला किया कि वो इसे आमिल के पास ले जाएंगी। गांव के करीब ही दरियाए सवान था, जिसके करीब उनका आस्ताना था। शाम को सोते हुए दानैन पर बड़ी शिद्दत का वजन पड़ा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई मखलूक उससे लिपट गई हो। उसकी गैर होती हालत देखकर फौरन हाजरा बेगम ने बुलंद आवाज में आयतुल कुर्सी का विर्द किया, जिसके बाद वो मखलूक उसके ऊपर से हट गई। आज ही उन्होंने इरादा किया था वो कल रात की तारीकी में सबसे छुपकर आस्ताने जाएंगी। अगर किसी को इस बात की भनक भी पड़ी तो उनकी बड़ी बदनामी होगी। पहले ही अमजद की माँ ने मंगनी तोड़कर सब लोगों को ये कहा था कि दानैन खराब लड़की है। गांव के लोग उनको अजीब अजीब निगाहों से देख रहे थे। अभी अमजद की माँ ने अमजद को इस बारे में कोई खबर नहीं होने दी थी। वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा पढ़ाई में दिमाग लगाने के बजाय दानैन की वजह से परेशान हो। दानैन का दिल भी इतना टूटा था कि उसने अपना फोन तक नहीं ऑन किया था। इसके फोन की बैटरी डेड थी, जिस वजह से फोन पावर्ड ऑफ था। अगली दोपहर को घर में पड़ोस से कुछ औरतें आ गईं और बातें बनाते हुए कहने लगी, जब मर्द का सहारा न हो तो औरतें यही कुछ करती फिरती हैं। उनका इशारा दानैन की तरफ था।
दानैन तो फूट फूट कर रो रही थी। हाजरा बेगम गुस्सा जब्त किए हुए थी। वो उन्हें कोई तल्ख जवाब देकर मजीद बदमजगी पैदा नहीं करना चाहती थी, वरना दानैन के दिफा में बोलना वो अच्छे से जानती थी। जब रात हुई तो उन्होंने चेहरे पर अच्छी तरह निकाब किया और दानैन को भी करवाया। इसके बाद घर को ताला लगाकर वो आस्ताने जाने के लिए निकल पड़ी। तकरीबन आधा घंटा उन्हें पहुंचने में लग गया। आमिल साहब बड़े नेक इंसान थे, उनके चेहरे से नूर टपक रहा था। दानैन को वो एक भले इंसान लगे थे। दोनों माँ बेटी ने शुरू से आखिर तक होने वाले सब हादसात के बारे में आमिल साहब को बताया। कुछ देर वो खामोश रहे और फिर तस्बीह के दाने घुमाते हुए कुछ पढ़ने लगे। उनके करीब ही कुछ लकड़ियां जल रही थीं, जिस पर लगी हुई आग काफी शिद्दत से भड़क रही थी। आमिल साहब की पढ़ाई से अचानक ही उसके आग के ऊपर एक साया सा नमूदार हुआ और देखते ही देखते उसका वजूद भी आग की तरह का हो गया। आमिल साहब अब इस आग से बने हुए वजूद यानी इस जिनजादे की तरफ मुतवज्जा हुए थे। दानैन ने डर के मारे आंखें मूंद ली थी। हाजरा बेगम को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। आमिल साहब ने उससे पूछा, तू इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, क्यों इसको खौफजदा कर रहा है? आमिल साहब के लहजे की करख्तगी महसूस करके उसके वहशतनाक से कह बुलंद हुए। फिर उसने कहा, मैं बदला लेना चाहता हूँ, मुझे इंतकाम लेना है। अब दोबारा मुझे मत बुलाना, वरना हर शय तहस नहस कर दूंगा। वो इस्ताल अंगेज लहजे में बोला और फिर साया बनकर हवा में मादूम हो गया। आमिल साहब ने बताया कि ये जिनजादे बहुत खतरनाक हैं और ये आप लोगों से कोई इंतकाम लेना चाहता है। इस किस्म के जिन्नात बड़े जिद्दी होते हैं और उनसे पीछा छुड़वाना खासा मुश्किल होता है, क्योंकि बगैर इंतकाम लिए ये इंसानों को ना बख्शते हैं और ना ही उनका पीछा छोड़ते हैं। ये सुनकर वो दोनों बुरी तरह चौंकी थी। हाजरा बेगम ने पूछा कि कैसा इंतकाम? जिन्नात हमसे भला इंतकाम क्यों लेना चाहते हैं? हमने तो कभी उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। वो परेशानी से कहने लगी। आमिल साहब का कहना था, ये फिलहाल जानना मुमकिन नहीं है। इस किस्म के जिन्नात बहुत इश्तियाल वाले होते हैं, जरा सी बात पर भड़क कर कोई भारी नुकसान कर जाते हैं। इसीलिए हम फिलहाल उनसे ये पूछ नहीं सकते कि आखिर इंतकाम वो क्यों लेना चाहते हैं। आपका क्या कसूर है? आमिल साहब का जवाब सुनकर वो मजीद परेशान हो गई। अलबत्ता आमिल साहब ने दानैन और हाजरा बेगम को बाजू में पहनने के लिए एक लाल धागा दिया था और उन्हें नमाज वक्त पर अदा करने की तलकीन करने के साथ साथ ये भी बावर कराया कि इस धागे को किसी सूरत नहीं उतारना, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 महीने बाद उन्हें दोबारा आने का कहकर एक वजीफे की किताब देकर उन्होंने दोनों को रुखसत कर दिया। दानैन रो रही थी। उसने हाजरा बेगम से कहा कि अम्मी प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलें, मुझे अब्बू के पास जाना है। वो जिद कर रही थी, लेकिन अभी ये कहाँ मुमकिन था। घर आने के बाद दानैन थक हार कर सो गई थी, जबकि हाजरा बेगम उसके सिरहाने के करीब बैठी वज़ाइफ पढ़कर उस पर फूंक रही थी। वो अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकती थी, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो हर हाल में इस जिनजादे से अपनी बेटी को छुड़वा कर रहेंगी। मगर वो नहीं जानती थी जो होने वाला था वो उनकी सोच के बरक्स था। गांव वालों ने तो दानैन और उसकी अम्मी पर उंगलियां उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यूनिवर्सिटी की छुट्टियों में अमजद भी गांव वापस आ गया था और फिर उसे दिल चीर देने वाली बात की भी खबर पहुंची कि उसकी मंगनी टूट चुकी है। उसने ये बात जानने के बाद वावेला मचा दिया, मगर उसके माँ बाप किसी सूरत अब दोबारा उसकी मंगनी और शादी दानैन से करने का सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया था। अमजद दानैन के घर भी इससे बात करने आया था, मगर दरवाजे से ही हाजरा बेगम ने उसे भेज दिया कि वो नहीं चाहती थी कि बात मजीद बढ़े और इनकी मजीद बदनामी हो। शुक्र था इस सूरत हाल के बारे में उनके शौहर को नहीं पता चला था। अलबत्ता उन्होंने उनसे ये झूठ बोला था कि स्ट्रेस से दानी की जहनी हालत डिस्टर्ब हुई है। ये बात उन्होंने झूठ कही थी, क्योंकि सच बताने का कोई फायदा नहीं था। वो कभी जिन्नात वगैरह वाली बातों पर यकीन ही नहीं करते। 15 दिनों बाद थक हार कर अमजद वापस रावलपिंडी चला गया। अलबत्ता उसकी माँ ने दानैन के खिलाफ उसके दिल में जहर जरूर भर दिया था और ये झूठ बोला था कि मंगनी दानैन ने तोड़ी है, क्योंकि उसका किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। सर्दियां उरूज पर आ गई थी, सब कुछ वैसा ही था। अब तो वो जिनजादा दानैन को पहले से ज्यादा डराने लगा था। चूंकि उसने हाथ में वो लाल धागा पहना हुआ था, इसीलिए वो उस पर काबिज नहीं हो पा रहा था। फिर एक रात वो सब हुआ जिस वजह से उसने दानैन पर कब्जा कर लिया। एक रात दानैन सो रही थी,
जब उसे महसूस हुआ उसके अब्बू उसे बुला रहे हैं, वो उठ कर बैठ गई। ये आवाज सहन से आ रही थी। वो खुशी खुशी भाग कर सहन में आई और अपने अब्बू से उनका हाल चाल पूछने लगी। उन्होंने कहा, बेटा दानैन, अब मैं आ गया हूँ, इसीलिए अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अब तुम्हें इस धागे की कोई जरूरत नहीं, इसे उतार दो। ये सुनकर दानैन ने फौरी कुछ सोचे समझे बिना बाप की बात मानते हुए वो धागा उतार दिया। लेकिन वो नहीं जानती थी उसके बाप का रूप धारे हुए वही जिनज़ादा था। जो ही दानैन ने धागा उतारा तो वो अपनी असली शक्ल में आ गया और उसने दानैन को बाजुओं में दबोच लिया। उसके बाद ना ही वहाँ दानैन का नामो निशान रहा और ना उस जिनजादे का। वो धागा जमीन पर गिरा हुआ था। दानैन को होश आ चुका था। यहाँ बहुत अंधेरा था। जब उसे याद आया वो धागा उतार कर कितनी बड़ी गलती कर चुकी है तो उसे शिद्दत से रोना आने लगा। दानैन को होश आ चुका था। यहाँ बहुत अंधेरा था। जब उसे याद आया वो धागा उतारकर कितनी बड़ी गलती कर चुकी है तो उससे शिद्दत से रोना आने लगा। इसी दौरान वो जिनज़ादा इंसानी रूप में वहां गया। कमरे में यकलख्त सब चिराग जल उठे थे और अब अच्छी खासी रोशनी हो रही थी। दानैन ने तड़प कर उससे पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। आज वो हिम्मत करके बोल पड़ी थी। जिनज़ादा हंसने लगा। उसने कहा, मेरा नाम मीर है और कसूर तुम्हारे बाप का है, लेकिन अजाला तुम करोगी। मुझे तुमसे वारिस चाहिए। मेरी औलाद तुमसे होगी, ये मेरा बदला है। तुम्हारे बाप से बहुत इंतजार किया था मैंने इस दिन का। इस जिनजादे मीर की बात सुनकर उसके होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था वो जिनजादा क्या कहना चाहता था। वो कुछ नहीं जानती थी कि उसके बाप ने ऐसा क्या किया था जिसका अजाला उसे करना था। वो जिनजादा इसे एक महल ले गया जहाँ उसने बकायदा दानैन से निकाह कर लिया। अब दानैन उसकी बीवी थी, जबकि दानैन खौफ के मारे उसकी हर बात मान रही थी। वो जिनज़ादा इसे एक बड़े कमरे में ले आया और फिर उसके करीब आने लगा और फिर हर तरह के इल्तिजा, आंसू और सब कुछ बेकार गया था। दानैन को लग रहा था वो किसी नशे के जेर असर है। इसके बाद वो अपने होश व हवास खो बैठी। सुबह दानैन को गैर हाजिर पाकर और जमीन पर गिरे हुए धागे को देखकर हाजरा बेगम रो रही थी कि उनकी बेटी को वो जिनज़ादा ले गया। मगर खुशी तब हुई जब कमरे से दानैन के रोने की आवाज आई और वो भागकर उसके पास गई और पूछा, तुम कहाँ थी दानैन? दानैन ने अपने साथ होने वाले दिल खराश सानेहे के बारे में बताया तो हाजरा बेगम को सांप सूंघ गया। वो फौरी उसे आमिल साहब के पास लेकर गई थी, जहां मजबूत अमल करके उन्होंने जिनजादे को हाजिर करवाया। तो वो बोला, दानैन को जो बच्चा होगा वो मेरा बच्चा है। अगर मेरी औलाद पैदा न की गई तो मैं दानैन को भी मार डालूंगा, उसकी माँ को भी और उसके बाप को भी। जब बच्चा पैदा हो तो उसे जंगल में रख जाना। बस दानैन का काम इतना ही है। जिनजादा गायब हो चुका था, जबकि आमिल साहब अफसोस करते रह गए कि अब जिनजादे की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। कुछ ही दिन बाद दानैन को अपने अंदर तब्दीलियां महसूस हुई। क्योंकि वो जिनजादे का बच्चा था इसीलिए जल्दी नशनुमा पा रहा था। दानैन दिन रात अपनी किस्मत को रोती थी कि जाने उससे ऐसा क्या गुनाह हुआ है जिसकी उसे सजा मिली। अब हाजरा बेगम ने दानैन को घर में छुपा कर रखा था कि अगर किसी ने दानैन को इस हालत में देख लिया तो कयामत आ जाएगी। लोग दानैन को बदकिरदार कहेंगे और गाँव की पंचायत के सरदार दानैन को सख्त सजा देंगे। यही उनके गाँव के असूल थे कि गुनाह करने पर सजा दी जाती थी। इसी तरह दिन गुजरते गए और 3 महीने बाद वो वक्त भी आ गया जब दानैन ने जिनजादे के बच्चे को जन्म देना था। जल्दी चलो दानैन, अगर गांव वालों ने हमें देख लिया तो कयामत आ जाएगी। उसकी माँ रूहानसी होकर बोली। उन्होंने एक बड़ी सी चादर दानैन के वजूद पर डाली और उसे लेकर खेतों की तरफ निकल पड़ी। खेतों के करीब ही घने दरख्त शुरू हो जाते थे। वो इसे लेकर दरख्तों के करीब आ गई ताकि कोई उनको देख न सके। अगर इस हालत में गाँव का कोई फर्द उनको देख लेता तो एक तूफान आ जाना था। उन्होंने दानैन को एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बिठा दिया और पानी वाली बोतल अपने हैंड बैग से निकाली। दानैन ने एक ही सांस में पानी की बोतल से पानी पिया और गहरे गहरे सांस लेने लगी। वो रो रही थी, उसके चेहरे पर अजियत थी। उसने कर्ब से कहा, अम्मी काश वो सब ना हुआ होता, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसकी माँ ने उसे हौसला दिया और कहा, हिम्मत करो बेटा, एक मर्तबा ये सब हो जाए तो मैं तुम्हें लेकर लंदन चली जाऊंगी। हम हमेशा के लिए इस मुल्क को छोड़कर वहाँ चले जाएंगे और यहाँ इस मनहूस गाँव में कभी वापस नहीं आएंगे। उसकी माँ अजियत के साथ बोली। दानैन के पेट में शिद्दत से दर्द उठ रही थी, मगर होश उसके और हाजरा बेगम के तब उड़े जब उन्होंने देखा कि उनके करीब ही कोई खड़ा उनको देख रहा था। ये एहसास ही रूह लर्जा देने वाला था। वो जान गई थी कि अब उन पर कयामत टूटने वाली है। जब गांव वालों को इसके बारे में मालूम पड़ेगा तो उनको कठिन सजा दी जाएगी। दानैन एक बार फिर रोने लगी। वो शख्स वहाँ से जा चुका था। बच्चे की विलादत के बाद जिनज़ादा मीर वहाँ आ गया था और उसने कहा था, बहुत जल्द मैं तुम्हें भी अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। आज मेरा बदला पूरा हुआ।
ये कहकर वो वहाँ से बच्चा लेकर चला गया। ये रात उन दोनों ने खौफ से ही गुजारी थी। अगले ही दिन ये खबर पूरे गांव में फैल गई थी कि दानैन हामला थी और उसने बच्चे को जन्म भी दिया है। ये सब बताने वाला कोई और नहीं बल्कि अमजद था। वही इन दोनों का पीछा करते हुए उस रात वहाँ आया था। हर कोई दानैन पर और हाजरा बेगम पर थू थू कर रहा था। जब पंचायत के सरदार को इस बात की खबर पहुंची तो कोई फैसला सुनाने से कबल उन्होंने उसके अब्बू इफ्तिखार साहब को पाकिस्तान आने का कहा। जब गांव आकर इफ्तिखार साहब को सूरत हाल का इल्म हुआ तो वो दंग रह गए थे। पूरा सच जब सरदारान की मौजूदगी में हाजरा बेगम ने बताया तो सब उन पर हंसने लगे थे। कोई भी उन दोनों का यकीन नहीं कर रहा था कि इतना अरसा वो जिनजादे की वजह से अजियत में रही थीं। सरदार ने फैसला सुनाया कि सबसे पहले दानैन को जना करने पर 100 कोड़े मारे जाएंगे, उसके बाद उस लड़के का पता करवाकर उसे कोड़े मारे जाएंगे और फिर दोनों को गांव से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर दानैन समेत उसके माँ बाप को सांप सूंघ गया। सजा का वक्त शुरू हो चुका था। सरदार ने एक औरत को बुलाया और उसके हाथ में चमड़े का कोड़ा पकड़ा दिया। हाजरा बेगम और इफ्तिखार साहब तड़प कर रह गए और दानैन को बचाने के लिए मिन्नतें करने लगे, रोने लगे, मगर उनकी पुकार न सुनी गई। गांव के सब लोग सजा देखने के लिए जमा थे ताकि वो भी इबरत हासिल कर सकें। दानैन उस वक्त मैदान के वस्त में बैठी हुई थी। जैसे ही उस औरत ने दानैन को पहला कोड़ा मारने के लिए चमड़ा हवा में बुलंद किया, उसी दौरान किसी अनदेखी कुव्वत ने चमड़ा उसके हाथ से खींच लिया और देखते ही देखते उस चमड़े को आग लग गई और वो राख में तब्दील हो गया। ये मंजर सब देखकर दंग रह गए। इसी दौरान मैदान में यकदम तेज मिट्टी का तूफान आने लगा और लोग अपनी आंखों पर हाथ रखने पर मजबूर हो गए। इसी लहजे वो मिट्टी का तूफान एक भंवर की शक्ल में तब्दील हुआ और फिर साए से उसने इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली। गांव वाले शिद्दतर रह गए। वो कोई और नहीं बल्कि जिनजादा मीर था। उसने गांव वालों के सामने दानैन के पाकीज़ा होने की गवाही दी और अपने निकाह के बारे में बताने के साथ साथ उसने बताया, कई साल पहले मैं और मेरा खानदान दानैन के घर में मौजूद पीपल के दरख्त पर मुकीम था। मेरी जिनजादी बहन का एक नन्हा बेटा था जिससे मुझे बड़ा प्यार था। हम लोग हंसी खुशी इस दरख्त पर रह रहे थे। हम किसी इंसान को तंग नहीं करते थे, मगर एक दिन दानैन के बाप ने हमें आगाह किए बिना दरख्त काट डलवाए ताकि सहन को वसी किया जा सके। हम लोग तो बच गए मगर मेरी बहन का बेटा कुल्हाड़ा लगने से मर गया। यूं हम बेघर भी हो गए थे। तब ही मैंने सोच लिया था कि मैं इंतकाम लूंगा। यूं कई साल मैंने इस दिन का इंतजार किया और फिर दानैन को खौफजदा करने की कोशिश की ताकि ये मेरी हर बात मानती जाए। कई बार मैंने उससे डराया और फिर उससे निकाह किया और उसने मेरे बच्चे को जन्म दिया, मगर वो बच्चा मैंने अपनी बहन की झोली में डाल दिया है। मेरा इंतकाम पूरा हो चुका है मगर मैं दानैन से मोहब्बत करने लगा हूँ, इसलिए ये भी मेरे साथ मेरी दुनिया में जाएगी। जिनजादा खामोश हो चुका था जबकि उसके जिन्नात वाले रूप को अपनी आंखों से देखने के बाद सब लोगों को यकीन आ चुका था कि वाकई जिन्नात होते हैं और दानैन और हाजरा बेगम सच बोल रही थीं। सरदार ने दानैन की सजा खत्म करते हुए उसे मासूम करार दिया। सब लोगों ने अपने गलत रवैये की उन दोनों से माफी मांगी थी। इफ्तिखार साहब ने रोते हुए जिनजादे के आगे हाथ जोड़े थे। मेरी एक गलती की सजा मेरी बेटी को भुगतनी पड़ी। मैंने बड़ों से सुन रखा था कि दरख्त काटने से कबल जिन्नात को आगाह करना चाहिए कि वो ये जगह छोड़ दें, मगर मैं हमेशा जिन्नात की हकीकत को जुटलाता रहा और हंसता रहा कि भला जिन्नात कहाँ होते हैं। इसीलिए मैंने कुछ सोचे समझे बिना दरख्त कटवा दिए। मुझे माफ कर देना। वो जिनजादे के आगे हाथ जोड़ रहे थे। चूंकि उसका इंतकाम पूरा हो गया था इसलिए उसने इफ्तिखार साहब को माफ कर दिया था। अमजद और उसकी माँ का भी मुंह बंद हो चुका था। अमजद को अब सारी हकीकत पता चली थी। वो और उसकी माँ शर्मिंदा थे मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। मुश्किल वक्त में उन्होंने दानैन और उसकी माँ का साथ नहीं दिया था, इसलिए वो इस बात के हकदार नहीं थे कि दानैन और हाजरा उनके साथ पहले जैसा ताल्लुक रख पाती। जिनजादा मीर मुसलमान घराने से था। उसने अपना अटल फैसला सुना दिया था कि वो दानैन को अपने साथ रुखसत करवा कर ले जाएगा। इफ्तिखार साहब और हाजरा बेगम ने दानैन को जिनजादे के साथ रुखसत कर दिया था क्योंकि इसके सिवा अब कोई चारा नहीं था। जिन्नात की दुनिया में आने के बाद दानैन को यकीन आ गया था कि जिनजादे के साथ आकर उसने ठीक किया था। जिन्नात लोग बहुत अच्छे और नेक थे, उसके गांव वालों की तरह नहीं थे। जिनजादे ने दानैन से माफी मांग ली थी और अब वो दोनों हंसी खुशी रह रहे थे। दानैन अमजद को भूल चुकी थी और इफ्तिखार साहब आज तक रोते थे कि अपनी गलती की वजह से उन्होंने अपनी बेटी को भी खो दिया और उनकी अपनी वजह से बेटी ने कितने गम उठाए। दानैन अब भी उनसे मिलने आती थी मगर वो इसे खो ही तो चुके थे क्योंकि दानैन तो अब जिन्नात की दुनिया में रहती थी। आप सब बताएं कि इफ्तिखार साहब की गलती छोटी थी या बड़ी? क्या आप लोगों को जिन्नात के वजूद पर यकीन है?